guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2022-2011 photosynthesis in plants. You can also join my telegram and follow me on the Instagram, which is given in the description box. So let's get started. Which one of the following is not true? Not पूछा गया true regarding the release of the energy during the ATP synthesis during the chemiosmosis. chemiosmosis में यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है. chemiosmosis में क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट वहाँ पर बनता है और उसको ब्रेक डाउन हो जाता है. Reduction of the NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane, yes it is correct. Breakdown of the proton gradient, yes it is correct. Breakdown of the electron gradient, ये तो देखो कहीं से कहीं भी नहीं होता है, so this is the right statement, right option. Movement of proton across the membrane to the stroma, this is also correct statement. Now next, given below are the two statements, statement 1 and statement 2. यहाँ पर दो statement दिए गए हैं, वो हमें बताना है कौन सा true है false है. The primary carbon dioxide acceptor in the C4 plants is PEP, phosphenol pyruvate, and is found in the mesophyll cells. So yes it is correct. Mesophyll cells में पेप्केस enzyme होती है and it acts as a substrate PEP. Now second statement, mesophyll in the C4 plant lack rubisco enzyme, this is also correct. And for the quick clarity of concept, you can see my expected question series. So here both statements 1 and 2 are correct. Option number 2 is correct one. Next, girdling experiment was performed by, girdling experiment देखो was performed by plant physiologist to identify the plant tissue through which, यहाँ पर वेरी सिंपल कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड, आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में वहाँ पर डिस्कस भी हुआ है. प्लीज़ गो टू दैट सीरीज ऑल्सो. यहाँ पर ये चेक करते हैं कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम. नेक्स्ट, what is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundle in the C4 plants. अब C4 plants की बात की गई है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांस एनाटॉमी होती है जहाँ पर बंडल शीट सेल्स जो होते हैं वो लार्ज सेल्स होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं बट ग्रेना नहीं होता है. सो व्हाट इज द रोल यहाँ पर पूछा गया है, to protect the vascular tissue from high light intensity, to provide the site for the photorespiratory pathway, to increase the number of the chloroplast for the operation of the Calvin cycle, to enable the plant to tolerate high temperature. एक्चुअल में जो राइट आंसर होगा वो ये होगा क्योंकि दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, following crops have been extensively cultivated in the carbon dioxide rich atmosphere for the higher ईड. तो यहाँ पर अगर हम लोग C3 और C4 के कंपैरिजन करें तो C3 जो प्लांट्स हैं वो कैन सर्वाइव इन द हायर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द टोमेटोज एंड द बेल पेपर. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस की बात की गई है और यहाँ पर दो फेजेस होते हैं, लाइट फेज और डार्क फेज. तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में कहीं से कहीं भी वाटर नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा. So the right option is the ATP, NADPH and oxygen. This is the right answer. Now, first stable product of carbon dioxide in the sorghum. अब ये जो sorghum है वो क्या है, वो C4 plants हैं, ठीक है. तो यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, दैट इज द oxaloacetic acid. So this is the right answer. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. सो ग्रैनल लैमेला हैज बोथ PS1 and PS2. Cyclic phosphorylation involves both PS1 and PS2. Both ADP and NADPH are non-cyclic synthesizing photophosphorylation, and stroma lamella has only PS1 and lack NADPH reductase. तो यहाँ पर देखो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में ओनली जो जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज PS1, PS2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ग्रेनल लैमेली में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2. अब ये जो नॉन साइक्लिक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें दोनों ही ADP और NADPH2 दोनों ही वहाँ पर होते हैं. स्ट्रोमल लैमेली में
PS1 भी नहीं होता है और NADPH भी नहीं होता, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। One scientist cultured Cladophora in the suspension of Azotobacter and simulated the culture by splitting light through the prism. He observed the bacteria accumulated mainly in the region of। ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो किसने किया था, एंगलमैन ने किया था। और उन्होंने क्या किया कि ऐसा ये प्रिज्म है उससे एक स्पेक्ट्रम निकाला, स्पेक्ट्रम ऑफ उसको लाइट को स्प्लिट करके यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया वहीं पर एक्युमुलेट होगा जहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कहाँ पे हो रहा था, इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ ब्लू एंड द रेड लाइट में ही वहाँ पर बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन हो गया था। So this is the right answer, option number D. Next, oxygen is not produced during the photosynthesis by। अब ऑक्सीजन नहीं जो प्रोड्यूस होती है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, साइकस एंड कैरा। तो यहाँ पर देखो, जो अगर H2O अगर यूज़ हो रहा है रिएक्शन में तभी ऑक्सीजन लिबरेट होती है। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, H2S। तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं होगी। सो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये एनऑक्सीजनिक लिखा हुआ जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो वो पूछा गया रोडोस्पिरिलियम, स्पाइरोगायरा, क्लमाइडोमोनास और अल्वा। तो यहाँ पर देखो जो रोडोस्पिरिलियम है वो एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। ऑक्सीजनिक यहाँ पर पूछा गया है कि जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑसिलोटेरिया, रोडोस्पिरिलियम, क्लोरोपियम और क्लोरामेटियम। तो यहाँ पर ऑसिलोटेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। नेक्स्ट, स्टोमा, स्टोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट्स कंटेन। स्टोमा की बात की गई है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। तो जो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, वो कहाँ पर होती है, स्टोमा में होती है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इमर्सन enhancement effect in the red drop have been instrumental in the discovery of। तो इमर्सन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें पता चला था कि कौन कौन से फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस। फोटो फॉस्फोरिलेशन इन द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी नहीं दिया था, फोटो फॉस्फोरिलेशन इन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, उसमें पिगमेंट्स होते हैं, वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। दिस इज द राइट ऑप्शन। विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द सोलर रेडिएशन आर प्राइमली एब्जॉर्ब बाय द कैरोटिनॉइड। जब उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप लोगों ने देखा था तो जो कैरोटिनॉइड्स का जो रोल था वो ब्लू और वॉयलेट रीजन में ही था, रेड रीजन में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा वॉयलेट एंड ब्लू। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा नहीं है उसका प्रोडक्ट। एटीपी, एनएडीएच, तो यहाँ पे वेरी क्लियर एनएडीएच नहीं होगा, एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन यहाँ पर बनते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा यहाँ पर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वेरी सिंपल यहाँ पर क्लोरोफिल। दिस इज द राइट आंसर क्योंकि लाइट रिएक्शन की बात की गई है। फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल बी। यहाँ पर देखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक्साइटमेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, एटीपी फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये होगा क्योंकि जैसे ही हम लाइट फॉल होती है क्लोरोफिल ए पर तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इमिट होता है और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स उसको कैच कर देते हैं। तो यू कैन ऑल्सो फॉर द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू कैन सी माई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। नेक्स्ट, NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू। NADPH किससे जनरेट होता है, फोटोसिस्टम 2, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस और फोटोसिस्टम 1। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज द फोटोसिस्टम 1। और ये बात किसकी हो रही है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन है ना, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो यहाँ पर देखो जो प्लास्टोक्विनोन होता है वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन किसको, साइटोक्रोम
B6F कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, फिर बाद में वो प्लास्टोसाइनिन में देता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा PS2 टू साइटोक्रोम B6F। तो ये सब इसके रॉन्ग आंसर्स हैं। यू कैन सी द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन माई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। नेक्स्ट, इन क्लोरोप्लास्ट द हाई नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोटॉन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड, क्योंकि तभी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर बनेगा। रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट बोथ फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है और अपहिल डाउनवर्ड दोनों ही हो जाता है। इन डाइकॉट स्टेम अ न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल से सेल्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं। ये डाइकोट स्टेम की बात हो रही है। नेक्स्ट, द स्टेमन इन द फ्लावर ऑफ द ग्लोरियोसन द पिटोनिया द पॉलीएंड्रस। यस, ये भी करेक्ट है। ए एंड बी जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर अकर्स इन द फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन द सॉइल। जैसे फ्रैंकिया हो गया, वो भी फ्री लिविंग स्टेट वहाँ पर अकर होता है। तो सी एंड डी इट इज़ द राइट स्टेटमेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हो गए? 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर? वेरी सिंपल, मैंगनीज होता है और दूसरा होता है क्लोरीन। रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट हैविंग द बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। Z scheme of light takes place in the presence of photosystem 1 only. This is wrong. Only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation. It is correct. Cyclic photophosphorylation result into the synthesis of ATP and NADPH2. This is wrong. Stroma Stroma lamellae lacks PS2 as well as NADP. तो ये भी करेक्ट हो जाता है। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नाउ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से क्या यहाँ पर बनता है? दैट इज द ओनली ATP, है ना। दिस इज द राइट आंसर। विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन द रेड ड्रॉप। यहाँ पर बात की गई है रेड ड्रॉप की। तो यहाँ पर देखो, जो P680 है, अगर हम इसमें हायर वेवलेंथ यानी कि फॉर रेड लाइट देते हैं तो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? डिक्लाइन। तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि PS2 जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज द लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिंग रिंग इन द क्लोरोफिल? तो द आंसर इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ये कहाँ पर होती है? मैट्रिक्स में होती है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विद थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स? तो देखो, पी जो होता है, पी के बारे में बात की थी, C3 पाथवे। एंडोस्पर्मिक सीड तो नहीं होता, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। टोमेटो की बात करें तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन नहीं होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, बेरी होता है। ओनियन जो होती है वो बल्ब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो दिस इज द राइट आंसर। लेकिन मेज की बात करें तो ये C3 पाथवे नहीं होता, C4 पाथवे होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। PGA is फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट और डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ। ठीक, इसमें हमें यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट इज इन द एल्गी। एल्गी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, PEP इज अ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन। तो PEP किस में होता है? C4 प्लांट्स में होता है, ओके। जबकि C3 प्लांट्स में क्या होगा? RUDP। नेक्स्ट, अ प्लांट इन योर गार्डन प्रोवाइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, मतलब फोटो रेस्पिरेशन नहीं है। हैज़ इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाई टेम्परेचर एंड हैज़ हाई इफिशियंसी ऑफ द नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। विच आर द फिजियोलॉजिकल ग्रुप यू वांट टू असाइन दिस प्लांट? तो ऑब्वियसली ये जिसका जो आंसर जाएगा दैट इज द C4, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन। बंडल शीथ सेल्स में क्या होता है? आर रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज, लैक रुबिस्को, ब्लैक बोथ रुबिस्को एंड पेप कार्बोक्सिलेज आर रिच इन रुबिस्को। सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो
C3 के थ्रू फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, CAM प्लांट help the water plants help in conserving water, secondary growth, disease resistance or reproduction. So very simple, conserving water, this is the right answer. In Kranz anatomy, bundle sheath have, bundle sheath में क्या होगा, वहाँ पे थिक वॉल होगी, नो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, लार्ज नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होगा। दिस इज द राइट आंसर। देखो नो क्लोरोप्लास्ट तो एकदम रॉन्ग हो गया, सेवरल क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है, नो इंटरसेलुलर बट थिन वॉल नहीं होती, थिक वॉल होती है। So this is the right answer, option number B. Next, Kranz anatomy is one of the following characteristic of the leaf of, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि Kranz anatomy किसमें होता है, C4 प्लांट्स में। और ये C4 प्लांट्स कौन सा हो गया है हमारा, शुगर केन। C4 plants are more efficient than C3 plant, क्यों ज़्यादा इफिशियंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इफ्लेक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, द ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल थ्रू द पेप कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट। इन द लीस्ट ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग, यानी कि मैलिक एसिड की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, गार्ड सेल, बंडल सेल, इपिडर्मल और मीजोफिल सेल। दिस इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पेप होता है वो, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये बाइंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और फॉर्म करेगा ऑक्सिलो एसिटेट, एंड दिस ऑक्सिलो एसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू द मैलेट। यू कैन आल्सो गो टू माय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। सो दिस इज द राइट आंसर, मीजोफिल सेल्स। नाउ नेक्स्ट, oxygenation activity of the Robisco enzyme in the photophosphorylation leads to the formation, फोटो रेस्पिरेशन की बात की गई, लीड्स टू द मॉलिक्यूल ऑफ। तो यहाँ पर देखो टू मॉलिक्यूल ऑफ द थ्री कार्बन कंपाउंड। अब एक्चुअल में देखो होता क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ PgA बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट ये होता है वो टू कार्बन होता है, और PgA क्या होता है, वो थ्री कार्बन होता है। नाउ लेट अस सी, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड, ये भी रॉन्ग हो गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड, दिस इज द करेक्ट one, one molecule of 6 carbon, one molecule of 4C and one molecule of 2C compound, this is also wrong. Next, the process which makes the difference between C3 and the C4 plant is, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या होता है, बाय द यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि C3 में वो प्रेजेंट होता है, C4 में फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, एब्सेंट। अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, द करेंट सीक्वेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बताना है तो सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, सुपरऑक्सीसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सोसोम, इंट्राफेंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्जी बॉडीज भी नहीं होती हैं, वैक्यूल का भी कोई रोल नहीं होता है। इन C4 plants are more efficient in the photosynthesis than C3 plant due to the higher leaf area, presence of higher number of chloroplasts in cells, presence of thin cuticle and lower rate of the respiration. So this is the right answer, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर इन, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम में। तो दिस इज द राइट आंसर। with reference to the factor affecting the rate of the photosynthesis, which of the following statement is not correct, देखो not के बारे में पूछा गया है। increasing carbon dioxide concentration up to 0.05 can enhance carbon dioxide fixation rate. C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, but C4 plants have much more lower temperature optimum. This is wrong. Tomato is a greenhouse crop which can be yield in the carbon dioxide rich atmosphere for the higher yield. Light saturation for the carbon dioxide occurs at 10% of the full sunlight. So this is the, ये wrong statement है, but यहाँ पर wrong पूछा गया, so this is the right answer.
Next, plant adapted to low light intensity have, इनके पास क्या होना चाहिए, larger photosynthetic unit than the sun plants. Yes, it is correct. Higher rate of carbon dioxide, even it is not correct. More extended root system, leaves modified to spine. This is wrong. The rate of the photosynthesis is higher in very high light, continuous light, red light or green light. Very simple, red light. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.